time I have already discussed about types of relation. Okay, types of relation means reflexive, symmetric, and transitive. Okay, now in that sequence, just we take a question 12th, question 12. Okay, so see, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है ना, तुम लोगों के पास बुक भी होगा. हेलो, एनीवन, आदर्श, हेलो आदर्श, यस सर। तुम लोग जब कुछ पूछता हूं तो बताना है ना, हाँ ना तो बोलना है. और क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है. लास्ट टाइम टॉपिक क्या था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. जस्ट हियर इज ए क्वेश्चन, जस्ट सी, रीड इट. ओके, बुक भी होगा. 12th क्वेश्चन. Show that the relation R defined in the set of all triangles as R equals to this. T1 triangles है, is equivalence relation prove करना है. Consider three right angle triangle T1 with side 3, 5, 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? Here we are given what? We are given इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. जस्ट ये सब हमको देखना है ना. तो सॉल्यूशन व्हाट? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव. साइलेंस प्लेस पे बैठ के अच्छे से पढ़ना है. रिफ्लेक्सिव, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट? आदर्श, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? Relation is given T1, T2 such that T1 is similar to T2. Similarity you know? Similar. T1 is similar. इधर उधर का साउंड आ रहा है तो माइक बंद रखना भैया, अच्छे से पढ़ो साइलेंस प्लेस पे बैठ के. The given relation is this. Given relation is this. T1 is similar to T2, or you can write in words here. T1 is similar to T2. This is relation, given relation. And set is what? Set is given as what? Of all triangles. Set of all triangles. That means set of all triangles. ये contains all the triangles in a plane, and we are having a relation R equals to T1, T2. T1 is similar to T2. Here reflexive. Reflexive means every element should related to itself. Since ये triangle is similar to itself. Triangle itself से related है, because triangle is similar to itself. खुद अपने से related similar होता ही है. So triangle is similar to itself. Therefore R is T1 is related to T2. That is, इसको कैसे लिखते हैं? ऑर्डर पर T1, T2 belongs to R, implies R is reflexive. R is reflexive. Okay. Then symmetric. Symmetric है कि नहीं? हेलो, टेल मी. Yes, sir. Yeah. है सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि T1 is similar to T2. Then we can say T2 is similar to T1. Very simple question. Just you have to write very systematically. Okay. Since, or you can write like this: for
any T1 T2 belongs to set T1 T2 belongs to R. T1 T2 belongs to R means what? T1 is related to T2. If we have T1 is related to T2, then T1 is similar to T2. So we can also write T2 is similar to T1. ये मैथमेटिकल नोटेशन है. T1 is similar to T2. ट्रायंगल है ये सब है ना. So T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर तो होना है. So just ऑर्डर चेंज हो जा रहा है यहाँ पर. So T2 T1 belongs to R. R means relation. So it show what? R is symmetric. Implies R is symmetric. R is symmetric. Now third one is what? Third one क्या है? Third क्या बताना है इक्विवेलेंस के लिए? Transitive. Okay. So transitive है कि नहीं? Easily transitive है. Because लिखना आना चाहिए ना. How can you write it? Okay. कैसा होना है? For any T1, T2, T3 belongs to A means three triangles लिया A set से. Okay. T1 here if we have the T1 related to T2 and T2 related to T3. T2 and T3 related. If both we have, then we have to show that T1 is related to T3. Okay. So for that you can write what? यार दिख रहा है ना T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है. This that means what? T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. So we can write T1 is similar to T3. Very simple. T1 is similar to T2, T2 is similar to T3. So T1 is similar to T3. So we can write T1 T3 belongs to R. Therefore R is transitive. Okay. Now three conditions are satisfied. Okay. Hence R is an equivalence relation. Equivalence relation. Okay. R is an equivalence relation. Okay, equivalence relation proof. And second question क्या है इसमें? Consider three triangles T1 side of 3 4 5, T2 with side 5 12 13, T3 6 8 10. Which triangle among T1 and T2 and T3 are related? Anyone can say? क्या होगा बताओ? ये जो तीन ट्रायंगल दिया है T1 है T2 है T3 है. पहले वाले का साइड 3 4 5 है, दूसरे वाले का 5 12 13, तीसरे वाले का 6 8 10. सो कौन सा ट्रायंगल किसी से रिलेटेड है? T1 किसी से, T2 से, T3 से रिलेटेड है कि नहीं? हेलो, सिमिलैरिटी दिखाना है ना. सिमिलर थ्री ट्रायंगल. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ सेकंड पार्ट. Here we are having given. Okay, given क्या है? T1 with side 3 4 5, 3 4 5, and T2 with side what? 5 12 13, 5 12 13, and T3 with side 6 8 10, 6 8 10. क्या लॉजिक देना पड़ेगा यहाँ पर? एनीवन टेल मी. क्या लॉजिक होना है? हेलो, तीन ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल, किसी भी कोई भी दो ट्रायंगल रिलेटेड है कि नहीं है? कोई गेस? प्रेम हेलो.
Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग बोलो. T1, T2, T3, three triangles are given, side like this, and इन दो तीनों में से कोई भी दो related है, relation you know in the question. What? T1 is similar to T2. एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर है तो रिलेटेड बोलते हैं. सो इसमें से कोई भी दो रिलेटेड है, ये तो क्वेश्चन है ना. सेकंड पार्ट, एनीवन टेल मी. सर जो पहला पार्ट था वो सेम पार्ट है कि अलग हो जाएगा थोड़ा? नहीं, अलग क्यों होगा. फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया? इन जनरल प्रूव किया. एक सेट, वन सेट इज गिवन, दैट इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. एंड रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन है कि दो ट्रायंगल, उनमें से कोई भी दो ट्रायंगल लो, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए. रिलेशन व्हाट? सिमिलरिटी. सो वो तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर लिया. ओके, नाउ ये पर्टिकुलरली थ्री ट्रायंगल दिया हुआ है. अगर इस टाइप का तीन ट्रायंगल हो जिसका साइड एज देखना हो, तो एक ट्रायंगल दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, सिमिलरिटी है कि नहीं, बताओ. कोई T1 इस T2 से सिमिलर है क्या? T2 सिमिलर कैसे? 10th में पढ़े ना. सिमिलरिटी मींस व्हाट? रेशियो ऑफ देयर साइड्स शुड बी सेम. पढ़े कि नहीं? Yes. we see that 3, देखो इन दोनों का रेशियो सेम है ऑलवेज, किंतु इनका नहीं है. 3/6, 4/8, 5/10 क्या हो रहा है? 1/2 हो रहा है ऑलवेज. Yes, sir. T1 और T3 similar. Therefore T1 is similar to T3, implies T1 T3 belongs to R. This is the answer. सेकंड पार्ट का ये आंसर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो डिस्कस किया ना लास्ट क्लास में, क्या है देखो. फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ये टेस्ट करना है, इक्विवेलेंसी टेस्ट करना है, और इस टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन हो सकता है. लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर से रहता है. अभी फंक्शन पढ़ेंगे उसमें आएगा. ओके, ये तो सिमिलर रिलेशन से रिलेटेड हो गया वन क्वेश्चन. और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसको डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या होना है इसमें. ओके, सो इस क्वेश्चन पे डिस्कस करें, वर्बली सॉल्व हो जाएगा. जस्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 14. तो लेट द L बी द सेट ऑफ लाइंस, मींस एक प्लेन में, जैसे अभी ट्रायंगल का सेट लिया था, अब यहां पर किसका सेट है? लाइन का. मतलब इफ all the lines collected and put in a set, that is L. Okay, and relation, what is the relation? L1 is parallel to L2. So equivalence relation, always equivalence relation होना है कि नहीं? वेरी सिंपल, होना है कि नहीं भाई? एक सेट लेना है, ठीक है. सॉल्यूशन में क्या लिखना है? सॉल्यूशन L क्या दिया हुआ है? सेट, अपना सेट क्या दिया हुआ है? सेट मतलब L दिया हुआ है. सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ लाइंस, जितने सारे लाइंस है प्लेन में उसको सेट में रख दिया. रिलेशन, रिलेशन क्या दिया हुआ है? ऑर्डर पेयर. वन लाइन, सपोज लाइन 1, लाइन 2, ऑर्डर पेयर. सो L1 इज पैरेलल टू L2. नाउ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन मींस, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन, आर रिलेटेड, A related to A for all A belongs to A. A related B implies B related A for all A B belongs to A. A related B, B related C implies A related C for all A B C belongs to A. ये है फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. सो हियर L1, अगर कोई भी एक लाइन लिया जाए, ये लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो रिफ्लेक्सिव. फॉर एनी, लिखना कैसे है? फॉर एनी लाइन L बिलोंग्स टू A, L इज पैरेलल टू L, इंप्लाइज L रिलेटेड टू L. ये जो A रिलेटेड A and A comma A belongs to R, ये सेम नोटेशन है. ये और ये नोटेशन दोनों सेम है. This means A related to A, this means also A related to A. So you can write like this or this.
ओके, सो दिस इज व्हाट, कोई भी लाइन लोगे वो अपने इटसेल्फ से पैरेलल है, सो रिफ्लेक्सिव. ओके, इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव. सिमिलरली अब इसमें वेरी सिंपल ना, क्यों प्रूव करना एकदम आसान है ना. ये वाला हो जाएगा कि नहीं, कैसे लिखना पड़ेगा. फॉर एनी L1 L2 belongs to A, L1 L2 belongs to R implies L1 is parallel to L2. So you can write L2 is parallel to L1. You can write L2 L1 belongs to R. Implies R is symmetric. क्लियर है. ट्रांजिटिव में कैसे लिखेंगे. हेलो, जस्ट टेल मी एनीवन, ट्रांजिटिव में कैसे लिखेंगे. हेलो, टेल मी एनीवन. फॉर If L1 parallel to L2, for L1 L2 L3, three triangles from set, and we have two relation. This means L1 related L2 and L2 related L3 implies L1 related L2, L2 related L3. That means what? L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. यहां से डिसीजन ले सकते हैं कि L1 is parallel to L3. That means what? L1 is related to L3. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. That is transitive. Okay, ये systematically you have to write it. Okay, implies R is transitive. R is transitive. Hence you can write R is an equivalence relation. Equivalence relation means what? Equivalence relation means all three conditions are satisfied. All three means reflexive, symmetric and transitive. So this relation, this is set, this is relation. For study of relation, we require first of set and a relation defined on that set. Okay, so set, this is relation. So relation is equivalence relation. And second part, so that R is an equal, find the set of all lines related to the line this. So how can you give the answer of that, the second part? सेकेंड पार्ट का आंसर कैसे देंगे बताओ. हेलो, सेकेंड पार्ट का आंसर देना है. सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है. सेट ऑफ ऑल लाइंस, वी हैव टू राइट सेट ऑफ ऑल लाइंस व्हिच आर रिलेटेड टू द गिवन लाइन. गिवन लाइन इज y equals to what? 2x plus 4. We have to find the set of all lines which are parallel to, or you can write here parallel or also which are related to y equals to 2x plus 4. इससे रिलेटेड वाले पूरे लाइंस को लिखना है. वी हैव टू राइट ऑल द लाइंस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस. रिलेटेड टू दिस मीन्स बाय दिस रिलेशन, दैट इज सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू y equals to 2x plus 4. So what will be the answer? क्या होगा. सेट ऑफ लाइंस लिखना है. एक सेट लिखना है जिसमें वो लाइंस है जो इसके पैरेलल है. सो हाउ कैन वी राइट इट, कैसे लिख सकते हो बताओ. किसी के पास कोई आइडिया है. We know that parallel lines have same
क्या लिख सकते हो बताओ, मैं क्या लिखना चाहता हूं। Slope. पैरेलल लाइंस हैव सेम, क्या होता है पैरेलल? स्लोप। स्लोप, ओके। सो पैरेलल लाइन के पास स्लोप सेम होता है, तो इसका जो स्लोप होगा और जितने सारे लाइंस लिखने वाले हैं उसका भी स्लोप वही होना चाहिए। क्लियर? वी नो दैट पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? एनीवन कैन से व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? 2. y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो m की जगह 2 लिखा हुआ है। y इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल्स टू 2 m। क्लियर? अब वो पूरे लाइन लिख देना है जिसका स्लोप 2 है। सो जनरल लाइन के इक्वेशन ऑफ जनरल लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, वी कैन राइट लाइक दिस। इसमें क्या होता है, दो कांस्टेंट है, एक स्लोप है और एक c है। अब c वेरी करेगा, m की जगह 2 लिख देंगे, दैट इज द equation of lines having slope m equals to 2 is given by y equals to mx plus, in place of m you have to write 2x plus c, where c belongs to, where c is any real number। क्लियर? ये जो लाइन है ये ऑलवेज इसके पैरेलल होगा, सी चेंज होगा। सो फैमिली ऑफ लाइंस, अगर इस सी को चेंज करते हैं, कभी 1 रखे, कभी 2 रखे, कभी 3 रखे, कभी 4 रखे, तो डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। ऑल लाइंस विल बी पैरेलल टू गिवन लाइन। सो वी कैन राइट thus the set of lines y equals to 2x plus c belongs to, ये मैं r लिखा हूं सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, रिलेशन के लिए नहीं। thus the set of lines y equal to 2x plus c belongs to r, में c वेरी करेगा तो लाइन बदलेगा। the set of lines this are parallel to given line, क्लियर है? मतलब सेट के अंदर वो सभी लाइन है जो इसके पैरेलल हो। गिवन लाइन मींस दिस, you can write also here 2y equals to 2x plus 4, so this is the answer। okay, now take objective type questions, this is okay। चलो बताओ कौन सा सही है इन दिस क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? हेलो, R with the set, R with the relation on the set 1 2 3 4 the set and relation is given 1 2, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 1 2 2 1 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर ए बी सी डी, इसमें से एक करेक्ट आंसर देना है। सो कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, इसमें थिंकिंग करना है, इसमें सोचो और बताओ। सिमेट्री है क्या? सिमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए?
हेलो, देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. ओके, यू हैव टू सिलेक्ट एन आंसर. ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना आर इक्वल्स टू क्या क्या दिया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर. हाँ रिलेशन दिख रहा है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं. अब देखो उसमें क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ना, रिलेशन लिखा हुआ. हेलो, रिलेशन दिख रहा है कि नहीं? हेलो, यस Yes, सर. sir. हाँ, तो रिलेशन में क्या क्या है? 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. तो इसमें सिमेट्रिक तो नहीं है ना? सिमेट्रिक है क्या? क्यों सिमेट्रिक है? नहीं. नो सर. बिकॉज 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है. नॉट सिमेट्रिक. और सिमेट्रिक नहीं है तो इसमें देखो एक जगह जहां बी ऑप्शन में सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बोथ दोनों है. व्हाई रिफ्लेक्सिव? व्हाई? बिकॉज 1 2 3 4 देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए. वो है सब 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव भी है. ट्रांजिटिव if we have a combination 1 2 2 2 1 2 2 2 then 1 2 बिलोंग होना चाहिए. इस टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन है ना ट्रांजिटिव होल्ड हो रहा है. देखो if we have combination a b a related b b related c then a related c, इस टाइप का कोई भी दो कॉम्बिनेशन मिलेगा ना इस सेट में से ले लेंगे, सो थर्ड वाला मिल जाएगा. सो ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. रीजन देते बन गया नॉट सिमेट्रिक, 1 2 बिलोंग कर रहा है बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है. ओके, सो आंसर इज बी. बी इज द आंसर. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज दिस 16 नंबर. ओके, 16 भी दिख रहा है स्क्रीन पे? हेलो, 16 दिख रहा है? सर. हाँ, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा? ए बी सी डी में से कौन सा होना है? डिस्कस करना है. देखो आर विद द रिलेशन in the given set n, n means set of natural number. Natural number के set में relation है. relation is what? a b, a equal to b minus 2, b greater than 6. correct answer we have to select. Here set is what? a equals to n, set of natural number. set of natural number. relation जो दिया हुआ है, relation means what? order pair a b और राइट किया हुआ b इक्वल्स टू क्या है? नॉट a इक्वल्स टू b माइनस 2 ना, a इक्वल्स टू b माइनस 2, a इक्वल्स टू b माइनस 2 एंड b ग्रेटर देन 6. दिस इज द रिलेशन. सो चूज द करेक्ट आंसर. इनमें से रिलेटेड मींस ये जो दिया हुआ है ना 2 4 रिलेटेड बिलोंग्स टू r, 3 8 बिलोंग्स टू r, दैट मींस 2 4 रिलेटेड है क्या, 3 8 रिलेटेड है क्या, 6 8 रिलेटेड है क्या, ये सिलेक्ट करना है. 2 4 रिलेटेड हो सकता है क्या? फर्स्ट ऑप्शन 2 4, इसका मतलब रिलेटेड हो सकता है क्या? ये रिलेशन को होल्ड करना है तो ए बी आर व्हाट? ए बी तो नेचुरल नंबर है. इसमें जो सेट में लिखा है ए बी नेचुरल नंबर है. सो ये 2 और ये 4 ये इसको होल्ड करेगा. बी ग्रेटर देन 6 है तो बी वाले पोजीशन में तो 4 लिखा है, बी की जगह पे 4 लिखा है तो बी ग्रेटर देन 6 भी होना चाहिए, तो नॉट बिलोंग, नॉट रिलेटेड, क्योंकि ये 6 है ही नहीं. 6 से ग्रेटर होना चाहिए ना, ये 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है. यस सर. सेकंड क्या दिया हुआ है? 3 8. हाँ, सेकंड में ये बी के प्लस पे है, दिस इज ग्रेटर देन 6, बट ये भी होल्ड होना चाहिए. ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 मीन्स 3 इक्वल्स टू b minus 2 means 8 minus 2 equals to 6, not. b भी नहीं होगा ऑप्शन. b ग्रेटर देन 8 है बट ये रिलेशन ट्रू नहीं हो रहा है, सो b भी नहीं है, ये नहीं है, b नहीं है. फिर c, ऑप्शन c ऑप्शन में क्या दिया है? 6 8. 6 8 में 6 and 8. Here b is greater than 6, ये b है greater than 6 है, and also 6 equals to 8 minus 2 equals to 6, right? So C option is
राइट। एंड आल्सो सी डी फॉर डी। डी में क्या लिखा हुआ है 8 and 7, यहां पर ये बी है, ये ग्रेटर देन 6 तो है, ओके, बट ये ट्रू नहीं हो रहा है बिकॉज 8 is equals to 7 minus 2 equals to 5, not equal, so डी भी नहीं है, राइट ऑप्शन इज सी। क्लियर हो कैसे डिसाइड किए? हेलो, कैसे डिसाइड हुआ? क्लियर हुआ? हेलो, कहीं तो बोलो कुछ Yes, sir. कि इधर उधर घूमते रहते हो, बस ऐसा मत करो, पढ़ो, है ना, 1 hour ओनली, बिकॉज दिस वर व्हाट विल हैपन विथ रिजल्ट ऑफ 12th क्लास, वी डोंट नो, इसलिए ध्यान दो। क्लियर है? सो दिस इज द एंडिंग ऑफ एक्सरसाइज 1.1, बट हमने कुछ क्वेश्चन किया, बाकी क्वेश्चन को करना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। नाउ सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं आज, है ना। 1 hour क्लास रहेगा, कोई लीव नहीं करोगे मीटिंग, और लास्ट में जब मैं बोलूंगा कि मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूं तभी क्लोज करना, क्योंकि मैं अटेंडेंस 2 बार लेता हूं बीच में, है ना। अटेंडेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेकंड टॉपिक क्या है? बुक लिए हो कोई? हेलो, Yes, sir. जस्ट टेल मी व्हाट इज द सेकंड टॉपिक? Types of function. Types of function, good. Okay, so types of function we have. Now, you know function, what is function? Now see, your topic is changed to what? Type of function. Okay, so types of function, just like types of relation. In the 11th class we have already discussed about relation and functions. रिलेशन एंड फंक्शन का डिस्कशन हो चुका है। इज एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट? कोई भी रिलेशन फंक्शन होता है क्या? फंक्शन पढ़ चुके हैं, डोमेन पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, वंस अगेन फंक्शन के टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। मेन थिंग इज अंडरस्टैंडिंग पार्ट, समझना बहुत जरूरी है, लिखना कैसे है। ओके, सो टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 and 2 आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। यू नो फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का डेफिनेशन मींस जस्ट रिलेशन। रिलेशन में क्या होता है? सपोज ये एक सेट है और ये एक सेट है, 1 2 3 से, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, clear? And this is set A, this is set B, and A cross B, you can write A cross B. A cross B having how many elements? A cross B में कितने एलिमेंट होंगे? Suppose we are writing A cross B लिखना है अभी, तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें? A cross B में इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3, और इसमें कितने हैं? 5. So 3 into 5, 15 एलिमेंट्स होना है, 15 एलिमेंट्स होना है, 15 एलिमेंट्स आएगा यहाँ पर order pair. Okay, like this, 15 element. But relation is what? Any subset of this is relation. That means इसमें अगर 1 2 लिखा हुआ है तो 1 2 only 1 2 भी लेंगे तो भी एक रिलेशन होगा। ये जो एलिमेंट है R में, सिंगल एलिमेंट लेंगे तो भी ये रिलेशन है, 2 लेंगे तो भी एक रिलेशन है। In that case 1 is related to 2 only, means 1 2 से related है, clear? बट ये दोनों छूट जाएगा। पर फंक्शन के लिए क्या नेसेसरी होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ द सेट बी। फंक्शन जो डिफाइन करते हैं ना, फंक्शन का जो डेफिनेशन है, इसमें 11th का टॉपिक है फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। दैट मीन्स व्हाट? फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन, आल्सो ए रूल व्हिच रिलेट all elements of A to some elements of B. यहां के सभी एलिमेंट को रिलेट होना चाहिए, इस इधर के सभी को होना चाहिए। So in every relation is need not necessarily function, मतलब कोई भी रिलेशन ले लो और फंक्शन हो जाए ऐसा नहीं है, बट फंक्शन इज ए रिलेशन, बिकॉज फंक्शन में तो ये सभी एलिमेंट का रिलेशन इधर होना ही है, और जितने भी रिलेशन रिलेटेड हो वो तो रिलेशन होना ही है।
So every function is a relation. Clear? So every function is a relation, but every relation need not necessarily function. Now function का types decide करना है. Function के type decide करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्टिव बोलते हैं. इंजेक्टिव, जस्ट इंजेक्टिव, दैट इज 1 1 1 1 फर्स्ट. सेकेंड सर्जेक्टिव, दैट इज ऑन2. थर्ड हम बाइजेक्टिव बोलते हैं. बाइजेक्टिव, सब लोगों को दिख रहा है? जस्ट एनी वन रीड दिस 3. कोई भी एक जन रीड करके बताओ. हेलो. Injective, surjective, bijective. इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव. नाउ इंजेक्टिव मीन्स दैट इज 1 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं. ऑन2 भी है जिसको सर्जेक्टिव. एंड बाइजेक्टिव मीन्स बोथ दिस. अगर दोनों 1 1 एंड ऑन2, इन दोनों को मिला दे तो ये, अगर ये कोई फंक्शन ये दोनों है तो बाइजेक्टिव बोलते हैं. दिस 3 आर मेन इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक. ओके, सो इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन. फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन यू नो. ओके, नाउ फंक्शन क्या होता है? एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होता है. ये दिस इज सपोज x, सेट y and this is function. What is function? Function is a rule from one set to another set. So first of all, 1 1 first thing is that every element of the set is related to or connected to, or every element have an image under f in y. कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए सभी एलिमेंट इसका. क्लियर ना? अब सपोज यहां पर एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है. ओके, इतने सारे एलिमेंट्स है. इसको क्या बोलते हैं? डोमेन. इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन. दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन. ओके, डोमेन, दिस इज कोडोमेन. ओके, अब ये डोमेन में यहां पर 3 एलिमेंट है और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7. नाउ एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड. सो ये अगर ऐसे कनेक्ट हो जाए, ये ऐसे कनेक्ट हो जाए और ये भी ऐसे कनेक्ट हो जाए. यहां क्या दिख रहा है? तीनों एलिमेंट कनेक्टेड है. ये दोनों जाके सिंगल में कनेक्टेड है. और अगर ऐसा बना है कि ये और यहां पर भी बना ले, ये अब ये इससे कनेक्ट हो, ये इससे कनेक्ट हो और ये इससे कनेक्ट हो. ये दिख रहा है कि इसके सभी एलिमेंट इसमें कनेक्ट है और डिफरेंटली कनेक्टेड है. यहां क्या हो रहा है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर कनेक्टेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ y. ये अगर ये x है, ये अगर y है, ये अगर x है, ये y है. बुक में बढ़िया डायग्राम दिया है, 4 डायग्राम, जस्ट देखना उसको, है ना. तो इसमें क्या हो रहा है? ये तीनों कनेक्टेड है, सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड है. यहां पर क्या दिख रहा है? तीनों कनेक्टेड है बट 2 distinct element are connected to same element. 1 1 for this. 1 1 का मतलब ये होता है, मैं सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड होना है. distinct elements are connected to distinct elements of codomain. और ये कनेक्शन मीन्स व्हाट? सपोज यहां x है और यहां पर इसको लिखते हैं y. So we also say that y is image of x under f. That is, we are writing like this: y equal to fx. What is this? Y is image of x under f. Okay? ये कनेक्शन ये होता है. ये जो कनेक्शन है 1 1. इसका मेन डेफिनेशन क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ, distinct means different element of domain are connected to distinct element of codomain. यहां के डिफरेंट एलिमेंट वहां के डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए. दैट इज वन. क्लियर?
यहां पर देखो ये दोनों डिस्टिंक्ट है एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट है बट सेम एलिमेंट से कनेक्टेड है, सो ये वन वन नहीं है, मेनी वन, दिस इज कॉल्ड मेनी वन. इफ फंक्शन इज नॉट वन वन देन कॉल्ड मेनी वन, ये मेनी वन है. ओके, सो हियर वन वन का डेफिनेशन क्या है? डिस्टिंक्ट elements of domain या domain X are connected to distinct elements of codomain Y. Okay, a function is called one one. A function is called one one if, सबको समझ में आया डेफिनेशन? हेलो, ध्यान दो इसमें. यस सर. एग्जैक्टिव वन वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो डिस्कशन है, 5-10 मिनट लगना है, अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान से, इसी सब क्वेश्चन सॉल्व होना है आगे. वन वन, ये फंक्शन इज कॉल्ड वन वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, दैट इज दिस, यहां का डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर कनेक्टेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ वाई, ये नॉट दिस. फंक्शन इज कॉल्ड वन वन इफ दिस. नाउ इसको मैथमेटिकली कनेक्ट, रिलेशन एल्जेब्रिकली कैसे लिखना है? Okay, suppose here x1, x2, x3, y1, y2, y3. y1 means what? fx1. y2 means what? fx2. y means what? fx3. ये जो y1, y2, y3 लिखा वो क्या होता है? वो तो इमेज है किसका? x1 का. So that's why y1 equals to, you can write fx1. So क्या होना है? अगर ये डिस्टिंक्ट है तो इनको डिस्टिंक्ट होना है. Distinct means not difference. That is, x1 is not equals to x2. Implies fx1 is not equals to fx2. ये मेन रिलेशन है. For all x1, x2 belongs to x. ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा, this, ये ओरिजिनल डेफिनेशन, बट इसका इनवर्स को यूज करते हैं. जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका इनवर्स यूज करते हैं. इनवर्स मींस दिस रिलेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, और fx1 is equals to fx2 implies x1 equals to x2. For all x1, x2 belongs to x. ये ज्यादा यूज होता है. सबको समझ में आया कि नहीं? ये डेफिनेशन समझ में आया सबको? हेलो, टेल मी, एनीवन? क्लियर है? Yes, sir. इधर देखना, एक चीज ध्यान इसमें ये देना है कि ये जो है एक्चुअल डेफिनेशन ये है अंडरस्टैंडिंग. इसको जब रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं ना, इनवर्स ऑर्डर में, सो अगर दो इमेज इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल दिखाना है, बिकॉज वर्किंग प्रोसेस यही है, इसी से करते हैं. बिकॉज ऑलवेज वी आर गिवन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है, सो फंक्शन की वैल्यू यहाँ और यहाँ यूज करना है और इसको सॉल्व कर देना है और दिखाना है कि ये इक्वल है, सो वन. सो ये यूज होता है. कभी कभी ये भी यूज होता है फॉर वर्बल डिस्कशन. फॉर वर्बल डिस्कशन में ये यूज होता है. कभी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन, सो वी कैन डिस्कस बाय यूजिंग दिस, बट सॉल्व करके देखते हैं. ये दो इमेज इक्वल ले लेते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं कि एलिमेंट इक्वल है, सो फंक्शन इज वन. वी कैन से इंजेक्टिव और वन वन. ओके, वन वन समझ में आया? हेलो, वन वन. हाँ, अब इसका क्वेश्चन लेंगे, क्लियर हो जाएगा. ये वर्किंग प्रोसीजर है और वर्बल डिस्कशन करते समय ये काम आता है.
सो कहीं ये यूज करता है, कहीं ये यूज करता है. वर्बली यू हैव टू राइट लॉजिकली कि वेदर इट इज वन वन और नॉट. सो हमको बताना पड़ता है कि फंक्शन वन वन है नहीं है. ओके, ये यूज करेंगे. नाउ सर्जेक्टिव. सर्जेक्टिव इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर्जेक्टिव. ओके, सेकेंड. ये फर्स्ट का डेफिनेशन हुआ. नाउ सर्जेक्टिव means unto function. Unto function means अभी जो रिलेशन में और फंक्शन में डिफरेंस है मेन. बट यू कैन ऑल्सो सी हियर, ये जो मैंने बनाया ना, यहां पर 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स आर देयर, बट 3 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू 3 एलिमेंट्स. हियर 2 एलिमेंट्स, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, बट दिस फंक्शन. ओके, ये जो रूल है ये फंक्शन तो है. ओके, अब मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन नीड नॉट नेसेसरली हैव सम प्री इमेज. ये इसको प्री इमेज बोलते हैं, उसको इमेज बोलते हैं. मतलब इसके सभी एलिमेंट का प्री इमेज एक्स में होना जरूरी नहीं है. किसके लिए? फंक्शन के लिए. फंक्शन के डेफिनेशन में क्या होता है? देयर मे बी सम एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट कनेक्टेड टू एनी एलिमेंट ऑफ एक्स. मतलब इसमें कुछ एलिमेंट ऐसा है जो इधर कनेक्टेड नहीं है, बट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स आर कनेक्टेड टू सम एलिमेंट ऑफ वाई, यूनिकली कनेक्टेड. दिस ओके, यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए तो फंक्शन होता है. अब एक कंडीशन ये लगा रहे हैं कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट को कनेक्ट होना है. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज ऐसा है, ये x है, ये y है, ये फंक्शन है, या 1 2 3 a b c, 1 is connected to c, 2 is connected to b, 3 is connected to a. this. अब ये बताओ, ये 1 1 है. हेलो, दिस इज 1 1 और नॉट? फंक्शन 1 1 है ना? ये फंक्शन इज 1 1 और नॉट? Yes. 1 1 है बिकॉज ये सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट से कनेक्ट है. 1 1 है. एंड वन थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हियर. यहां से ये डिफरेंट क्या है कि इसके तीनों एलिमेंट इससे कनेक्टेड है. दिस इज अनटू फंक्शन. अनटू फंक्शन का मेन डेफिनेशन क्या है? if each element of codomain have some pre-image in domain. कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है. कोडोमेन के सभी एलिमेंट को इधर कनेक्ट होना चाहिए. सो फॉर दिस फंक्शन इज कॉल्ड अनटू. ये फंक्शन इज कॉल्ड अनटू if each element of codomain y is connected to some element of domain, that is not connected, you can write each element of codomain have pre-image in domain X. क्लियर है? ये डेफिनेशन समझ में आया ना? मीन्स इधर के सभी एलिमेंट
इधर कनेक्टेड होना चाहिए. ओके, सो वर्किंग फॉर्मूला कैसे लिखना है? फॉर ईच x, not x, y. For each y belongs to y, there exists an element x belongs to x such that y equals to fx. ओके, कोई भी पहले लीव नहीं करेगा मीटिंग. 1 आवर का क्लास है, लास्ट में अटेंडेंस भी लूंगा मैं. ओके, ये डेफिनेशन देखो, समझ में आया? हेलो, कोई ना कोई रिप्लाई करो. It can be also written like this, fx equals to y. हेलो, इधर देखो, Yes, sir. ये डेफिनेशन, ये वर्किंग प्रोसीजर है. ये जो मैंने लिखा है, ऐसे करके हमको प्रूव करना है. फॉर ईच y बिलोंग्स टू y मीन्स इसका सभी एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट से, इसका सभी एलिमेंट इसके एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए. सो व्हाट? फॉर ईच एलिमेंट ऑफ y, फॉर ईच y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x. मतलब यहां के एक y है तो इस यहां पर एक एलिमेंट होना चाहिए कि f से कनेक्टेड हो. For each y belongs to y, there exists an element x belongs to x, such that this rule form, that is fx equal to y. Means अगर y का एलिमेंट है, so x के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए, such that like this. This means what? Rule of the function fx, y equal to fx. Okay, so this is the definition of unto function. हेलो, समझ में आया? अब हम कौन सा डेफिनेशन दे? बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है? अभी बताया था मैंने. हेलो, बाइजेक्टिव मींस ये दोनों हो, Objective और subjective दोनों रहता है. दोनों रहता है, 1 1 and unto. If a function is Yes, sir. 1 1 and unto, then we say that the function is bijective function. Okay, bijective 1 1 unto means bijective. Okay, a function fx is bijective if it is 1 1 and unto. ओके, सो कभी कभी ऐसा लिखा रहता है 1 1 unto, ऐसा लिख देते हैं 1 on function unto. क्लियर? ये फंक्शन इज bijective if it is 1 1 and unto. Now I think 5 minute remaining है. अब एक क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूंगा ऑलरेडी. ओके, दिख रहा है सबको? हेलो, क्वेश्चन दिख रहा है? चलो, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट फंक्शन. शो दैट द फंक्शन, 5 मिनट लीव नहीं करना है मीटिंग, क्योंकि 1 आवर का क्लास है तो 1 आवर तक रहना है सबको. शो दैट द फंक्शन f r star to r star defined by fx equal to 1 by x is 1 1 and unto, where r star is the set of all non-zero real numbers. r star इसलिए लिखा है, r star is non-zero real number होना है, पूरे रियल नंबर है, कोई जीरो नहीं है. ओके, is the result true if the domain r star is replaced by n? अगर डोमेन की जगह r star ना लेके अगर नेचुरल नंबर ले तो क्या ये ट्रू होगा? ये बोला गया है. ओके, सो 1 1 प्रूव करना है. सो टाइम कम है इसलिए इसको डायरेक्ट समझा रहा हूं. क्या करना है 1 1 में? क्या करते हैं? वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल इज फॉर एनी x1 x2, ये किसका एलिमेंट होना चाहिए? डोमेन का. फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू r, fx1 इक्वल्स टू fx2 इंप्लाइज, मतलब ये जो लिखा है ना, ये इक्वालिटी लेते हैं और प्रूव करके दिखाते हैं कि x1 इक्वल टू x2.
ये x1 x2 किसका एलिमेंट है? नॉन जीरो रियल नंबर है। सो fx1 इक्वल टू fx2 मींस ये डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो 1/x लिखा हुआ है, 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x2। सो ही फ्रॉम हियर बिकॉज x1 x2 आर नॉन जीरो, जीरो नहीं है, सो यू कैन राइट x1 इक्वल्स टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। हो गया, ये वर्किंग रूल है, बताया था ना, fx1 इक्वल टू fx2 लेना है और सॉल्व करके दिखाना है कि x1 इक्वल टू x2, दिस इज 1 1। क्लियर है? और ये x1 x2 क्या होगा? डोमेन का एलिमेंट है आर स्टार, नॉन जीरो, जीरो नहीं है x1 x2, बिकॉज जीरो होता तो नीचे जीरो आता, इन्फिनिटी आता, सो नॉन जीरो है, सो दिस f इज 1 1। क्लियर? अनटू दिखाना है, अनटू, वन वन था ये, अनटू हो जाएगा कि नहीं? हेलो, अनटू में क्या करते हैं? फॉर y belongs to y, here not y, यार आर स्टार, कोडोमेन का एक एलिमेंट लो, कोडोमेन का एक एलिमेंट लो, कहां का एलिमेंट लिया? कोडोमेन का, y belongs to r स्टार, then take x equals to 1 upon y in r star. We get f of x equals to f of 1 by y equals to 1 upon y equals to y, implies fx equals to y. Everyone listen and see carefully. हमने क्या किया यहाँ पर? y r स्टार दोनों जगह पे है, फंक्शन कैसे डिफाइन है? f r स्टार टू r स्टार, ये y की जगह पे है, ये भी नॉन जीरो रियल नंबर लिया 1, y एक नॉन जीरो रियल नंबर है, so 1 upon y is also a non zero real number, so y 1 upon y is also belongs to r star, उसी का नाम दे दिया x, for y belongs to r star then take x equal to 1 by y in r star, we get, क्या हो रहा है? फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ गिवन है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या दिया है? fx equals to 1 upon x, fx equal to 1 upon x, so fx equals to f x के प्लस पे क्या लिखा? 1 upon y, और ये डेफिनेशन यूज किया 1 upon y, x के जगह पे 1 upon y equals to y, so we get fx equal to y, fx equal to y, that is unto, therefore f is unto. सबको समझ में आया कि नहीं? हेलो, unto का क्या डेफिनेशन था? For each y belongs to codomain, there exists an element in domain such that fx equal to y, so function is unto. So hence proved, f is 1 1, f is unto if we take f r star to r star and definition is this. और एक टॉपिक इसमें बचा है अभी, क्या दिया है? अगर हम यहां पर n ले ले नेचुरल नंबर तो क्या अनटू होगा? जस्ट रिप्लाई मी, तब तक अटेंडेंस ले रहा हूं, एवरीवन जस्ट गिव मी रिप्लाई। अगर डोमेन के जगह नेचुरल नंबर का सेट ले तो होना है क्या? हेलो, फिर सब सो गए क्या? हेलो, छाया, हेलो छाया बोलो, उर्वशी नो सर। क्या होना है? अगर हम यहां नेचुरल नंबर लेंगे, इस जगह पे नेचुरल नंबर, सेटअप नेचुरल नंबर यूज करें तो क्या होना है? क्वेश्चन क्या दिया है? ये जो ट्रू है क्या? अगर नेचुरल नंबर ले ले तो सृष्टि बताओ। हेलो हेलो, अगर हम यहां पर नेचुरल नंबर ले ले तो क्या ये दोनों सही होगा?
एनीवन? नो सर। नहीं होना है बिकॉज फर्स्ट पार्ट सर। बिकॉज क्या है, अगर हम एक रियल नंबर ले लें यहां से एक रियल नंबर ले लें, है ना, लॉजिक अब दूसरे बदल के उससे करेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंटल कनेक्शन में आएगा। बिकॉज क्या है, इधर नेचुरल नंबर लोगे, यहां पर हमने क्या लिया था, ये यहां पर अगर हम 1.2 ले लें तो इसके अंदर भी 1/1.2 होना चाहिए, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो 1/2 नहीं होगा, 1/1 होगा क्या। यहां का कोई दो रियल नंबर ले लें हम, यहां पर क्या है, यहां से दो एलिमेंट लेंगे, यहां का दो एलिमेंट ले ले नेचुरल नंबर, 1/1 होना है कि नहीं होना है, बताओ। लॉजिक के साथ बताना है 1/1 है कि नहीं है। यस सर, 1/1 होगा। हाँ, ऑन टू नो। नो, बिकॉज ये रियल नंबर है, यहां पर अगर y की जगह हम मान लो 1.5 ले लेते हैं, तो फिर यहां पर 1.5 होना चाहिए, किसमें, n में, जो कि नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा, बट यहां पर हो जाएगा। एनी टू एलिमेंट्स यहां से ले लो नेचुरल नंबर में से, रियल नंबर लेने से हो रहा है तो नेचुरल नंबर लेने से तो होना ही है। सो 1/1 होना है, बट ऑन टू नहीं होना है, ये होना है, ये नहीं होना है, इफ वी टेक दिस एज नेचुरल। क्लियर? सो 1/1 ऑन टू का डेफिनेशन सबको पता है, अभी लिख सकते हो, समझ सकते हो ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस related to this 1/1 on 2, very very important, okay। so attend करना है ठीक से क्लास, okay। now मीटिंग क्लोज कर रहा हूं, okay। Thank you, sir. okay थैंक यू सर। okay